آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب؟ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ جی آپ کون؟ جی میں محمد عالم بات کر رہا ہوں۔ اچھا، محمد علی صاحب سنی ہمسی بریلوی؟ جی حضرت؟ سنی ہمسی بریلوی؟ نہیں، ہم تو ہیں دیوبندی ہیں۔ اچھا جی بولیے محمد علی آپ کا صاحب، کیا بیان، نام کیا آپ نے؟ جی فرمائیے۔ اگر جی وہی آپ کا بیان سنا اچھا جی، اس میں جو ہے وہ بہت گالی گلوچ، یہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا حضرت؟ جی صحیح بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ جیسے چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے جس فرقے سے ہوں، گالی گلوچ کسی کے اوپر، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ہاں کسی کے اوپر اچھا نہیں ہے نا، ہاں انسانیت کے ناطے، جی فرقے کے ناطے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا سا خیال کریں حضرت۔ السلام علیکم۔ نہیں، آپ نے لوگوں کو سمجھائیے، آپ مجھے مت سمجھائیے، میں کسی کو کچھ غلط نہیں کہتا۔ نہیں، میں سمجھانے، میں اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ نہیں، قابل تو ہیں ماشاءاللہ، مطلب کافی جو ہے آپ بردوار نظر آ رہے ہیں، کافی سمجھدار نظر آ رہے ہیں حضرت، ہاں۔ آپ تو الحمدللہ ہیں اس قابل۔ نہیں آپ اگر دیکھیے، ایک آدمی ہوتا ہے، ایک عام آدمی، جیسے ہم تو ایک عام آدمی ہیں، آپ میں بھی عام آدمی ہوں، کوئی خصوصیت نہیں، کچھ خصوصیت کے حامل ہیں کہ الحمدللہ آپ کے اشاروں پر 200-400 آدمی۔ جی حضرت، ہلو، ہاں، ہم نے کہا آپ کے اشاروں پر 200-400 آدمی تو کھڑے ہو جائیں گے، جو آپ کہیں گے اسی کو صحیح، جو آپ کہیں۔ 200-400 تو نہیں ہے جی نہیں، جیسے وہی نا، تو خاص ہو گئے نا آپ۔ ہم تعداد پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں جی، مگر یہ ہے کہ آپ کے تعداد پر بھروسہ کرتے ہیں، اولاد رسول پر بھروسہ کرتے ہیں، آل رسول پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو سب کا نبی کی محبت پر بھروسہ کرتے ہیں یار۔ بھروسہ ہونا چاہیے، مگر آپ کی الحمدللہ عوام میں مقبولیت ہے، آپ کی بات کی بڑی ویلیو اور بڑی اہمیت ہے، آپ کے منہ سے جو لفظ نکلے گا۔ جی آپ کو کیسے معلوم؟ نہیں، بس بات سے پتہ چلتا ہے نا حضرت۔ نہیں مطلب تو آپ نے کیسے یہ پتہ لگا لیا کہ مطلب ہماری بات کو اتنا جو ہے لوگ، جو بھی عوام، جو بھی عالم ہوتے ہیں، جو بھی چاہے جس فرقے سے ہوں، بھائی میں بھی عالم ہوں حضرت، میں بھی ایک عام آدمی ہوں۔ نہیں، عام آدمی تو سبھی رہتے ہیں، بس کچھ خاص ہو جاتے ہیں عوام کی نگاہ میں۔ اچھا، ان کی باتوں کو لوگ اہمیت دیتے ہیں، ان کی باتوں کو لوگ مانتے ہیں۔ اچھا تو آپ بھی مان جائیے اور اس طبقے سے نکل کر اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیے، جنتی راستے پر آ جائیے۔ الحمدللہ ہماری تعلیم بچپن کی، اس آڑے ٹیڑھے راستے کو چھوڑ دیجیے۔ نہیں، ہم تو رسول کو رسول مانتے ہیں اور صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کے عقائد سے بے خبر ہیں، باخبر نہیں ہیں، آپ انجان ہیں، دھوکے میں ہیں، نادانی میں۔ جی میں 100% کہہ رہا ہوں، لکھ کے دے دوں گا آپ کو۔ جی، جیسے غلطی کہاں ہوتی ہے، آپ نے جانکاری کر لی اور آپ نے جان لیا اور جاننے کی کوشش کی، تو الحمدللہ میں 100% کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوبندی کہلانا بھی اپنے آپ کو پسند نہیں کریں گے، جیسے آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم تو دیوبندی ہیں۔ جیسے بتائیے غلطی کہاں ہوتی ہے حضرت؟ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جو کمال وہ رسول اللہ کے لیے نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، وہی سارے کمال اپنے بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم تو نہیں مانتے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکے میں ہیں۔ میں نے تو پہلے بتا دیا کہ آپ دھوکے میں ہیں۔ نہیں، ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے عالم کو جو ہے ان کی، ہم تو عالم کو بھی نہیں، بس ایک عام
मानते हैं। जमात आप पर चलती है कि आपके बुजुर्गों से चलती है? और जमात किसी एक फर्द से चलती है कि अफराद से चलती है? जमात तो एक फर्द पे चलेगी ना, एक फर्द वही से लेके चलेगी। चले। किसने पढ़ाया है आपको? किसने बताया कि एक फर्द से जमात चलती है? नहीं, जो आगे अरे चलते जमात के हैं लिए जमा होना जरूरी है। जी, जमात के वाहिद से कभी जमात चलती नहीं, जमात जमा से चलती है। लिए जी। देखो, मैं फिर वही कहूंगा, आप धोखे में हो, नादानी में हो, अनजाने में हो, आप अपनी जमात के जो सबसे बड़ा जी काबिल आलिम हो, जो सबसे बड़ा आलिम हो दुनिया का, आप जी, उसको तलाश कर लीजिए और मेरी बात करा दीजिए। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अभी है कोई लाइन पे तो ले लीजिए। नहीं नहीं, मेरा ना इरादा कुछ ऐसा था, बस मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, आपका तो हमने इरादा भी इस्लाह कहा का था, मेरा इरादा भी इस्लाह का है। मैं जी समझ रहा हूँ कि आप धोखे में उन लोगों के साथ हैं, अनजाने में उन लोगों के साथ हैं। जिस तरह के बच्चा नादानी में, अनजाने में चूल्हे की तरफ दौड़ता है, उसको नहीं मालूम कि ये आग है, ये जला जी देगी, हजरत, मगर बच्चा दौड़ता है। मगर घर वाले समझते हैं, जानते हैं कि हाँ ये आग क्या चीज है, अगर बच्चा आग में चला गया तो झुलस जाएगा, जल जाएगा। जी मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नादानी में उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर आग भड़क रही है। जी 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 जी। हाँ, तो मैं आपकी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ, आपकी आखिरत अच्छी हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ, ना कि उसमें मेरा कोई फायदा है। नहीं, इन सब के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल अपना चलता है, वही मैं देखता हाँ हूँ। ठीक है, आपका हॉस्पिटल चलता है, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए, अब आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मरीज आया, ठीक है, जी हजरत। तो कोई ऐसी परेशानी है, कोई कोई अंदर फोड़ा है, फुंसी है, आंत में कोई बस्ट हो गया है, ठीक है, या किसी को डिलीवरी नहीं हो रही है, डिलीवरी भी करते हैं? नहीं, डिलीवरी तो नहीं होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको डिलीवरी के ताल्लुक से नहीं समझाऊंगा। मान लीजिए अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन उसको अच्छा करने के लिए करते हैं, उसकी जो चीर फाड़ करते हैं आप, उसको अच्छा करने के लिए या उसको तकलीफ देने के लिए? नहीं, नीयत तो अच्छा करने की होती है। अच्छा करने की नियत होती है ना। जी। मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो आप इसको ऑपरेशन समझना। मैं आपकी नहीं नहीं। आखिरत मैं आपकी आखिरत को सोच के बात कर रहा हूँ आपसे। जी हाँ, आप डॉक्टरी लाइन में हैं और हॉस्पिटल चलाते हैं, तो आपको ये जानकारी है कि हम जिस मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं उसको इस तकलीफ से निजात दिलाना है। नहीं, हर चीज जैसे जो भी बात करता है, जैसे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी गाली गलौज पे क्यों मामला पहुंच जाता है, उधर मैंने से आपको कुछ गाली कहा उधर से डॉक्टर साहब? गाली। नहीं नहीं नहीं, ना आपने कहा, हम भी। सामने वाला जिस मुझे तरह वो का बंदा होता है मैं उसी तरह से बात करता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई आलिम नहीं। जी सामने वाला बदतमीजी करता है तो पहले समझाता हूँ, आप मेरी कोई भी ऑडियो सुन लीजिए। अगर नहीं मानता है तो फिर मैं पहले उसको बोल देता हूँ कि तुझे ऐसा मगर नंगा करूंगा कि हाँ, जिस्म पे चड्डी बनियान भी नहीं छोड़ूंगा। मगर इसमें तो जैसे जो भी गंदा अल्फाज जो भी मैं निकालेगा तो नहीं वो तो कहता ना, वो तो माँ बहन की गालियां बकते हैं मुझे। आपने कितनी ऑडियो में सुना होगा कि वो मुझे माँ बहन की गालियां बकते हैं, मगर मैं तो नहीं कहता ना। मैंने अगर उसको नहीं। कभी उसकी माँ बहन की गाली बकी हो तो आप मुझे बताइए, एक ऑडियो मेरी दीजिए। जी 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 मेरा मकसद इस्लाह का ही होता है, मगर लोग असल में बात क्या है, मुझे गाली क्यों बकते हैं कि बहुत सारे देवबंदी तौबा कर चुके हैं, और खास करके मुजफ्फरनगर के भी बहुत सारे देवबंदी तौबा कर चुके हैं। जी और जी बहुत सारे ऐसे भाई थे जो वहां भी देवबंदियों से तालमेल रखते थे, मेल जोड़ रखते थे, खाना पीना उनके साथ खाते थे। वो लोग उनसे अलहदा हो गए, अलग हो गए, और मुझे कॉल करके बताते हैं कि नूर हसन भाई, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, हमें उतनी जानकारी नहीं थी, मगर जो हमने जो आपकी गुफ्तगू सुनी है, तो इनके जी पास उठना बैठना तो दूर की बात, इनके साथ खाना पीना तो दूर की बात, हम इनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो वो लोग जो अहले सुन्नत हैं, जो मुसलमान हैं, जो मोमिन हैं, जो वफादार रसूल हैं, जो अपनी गलत फहमी की वजह से, अपनी कमीलमी की वजह से इन लोगों के साथ थे, दुश्मनाने रसूलों के साथ थे, उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, इसलिए मुझे गाली बकवाते हैं, और कोई बिना थोड़ी है। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास कॉल करूं और मैं आपको आग कड़ाक बोलूं, उल्टा सीधा बोलूं, आप मेरे साथ क्या करेंगे बोलिए? फोन कट कर देंगे। चलिए, फोन आपने कट कर दिया, मगर आप एक अकेले ऐसे
शख्स हैं कि आप फोन कट कर देंगे, मैं फिर भी बार बार आपको कॉल करूं, फिर क्या करेंगे? अगर ये तो जैसे कितना वही बर्दाश्त कर है सकते कि हैं आप ये बताइए, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? ऑप्शन है ना, जैसे जो भी ऑप्शन नंबर तो है। है, मगर बर्दाश्त कितना कर सकते हैं? बर्दाश्त की कोई हद होती है? जी मुझे जी एक एक बंदा दिन में अनगिनत कॉल करता है, जी एक एक बंदे की बात बता रहा हूँ, और वो भी देवबंदी की। जी जिन लोगों से मैं बात करता हूँ उनको जलील और रुस्वा खुलेआम करता हूँ, और जब वो जलील और रुस्वा हो जाते हैं, वो जब समझ लेते हैं कि हाँ इसने हमारा पर्दाफाश कर दिया, तो मगर बार बार वो हजरत कॉल करके गाली बकते हैं, बदतमीजी करते हैं, धमकी देते हैं। आपने नहीं हजरत सुनी मेरे खिलाफ की ऑडियो? कोई कहता है हजरत हाँ। हजरत जैसे हमारे आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यही चीज करते तो आज हम लोगों के पास ईमान उस तरह पहुंचता जैसा आज है। जैसे वो तो कुफारों से भी मोहब्बत करते थे ना, उनके ऊपर कितनी अगर ज्यादती हुई, कितना बात कितना कुछ हुआ। डॉक्टर साहब, बात उनके ये है, बात जी ये हजरत। है कि आप लोगों को एक पहलू दिखाया जाता है, दूसरा छुपाया जाता है। मेरे आका जी की मोहब्बत तुमको इसलिए बताई गई कि हम तुम लोगों को गलत साबित करते हैं, जी और खुलेआम आपकी पहचाने बता देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई रसूलुल्लाह ने तो उनसे भी मोहब्बत की है, रसूलुल्लाह ने तो उनसे भी मोहब्बत की है। अरे रसूलुल्लाह का वो पैगाम क्यों नहीं सुनाते जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरम सलाखें करवा के सुरख करा के उनकी आंखों में भी भोंकी? ये पैगाम क्यों नहीं सुनाते? तो बस इसलिए सुनाते हैं कि वहां बरेलवी हम लोगों को, देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल साबित ना करें, हमको गुस्ताखे रसूल ना बोलें, हमको दुश्मनाने रसूल ना बोलें। भाई वो हदीस भी सुनाओ ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाखें गरम करवाई और कहा कि जब सलाखें गरम हो जाए तो मुझे बताओ, और जब सुरख हो गई तो आंखों में भोंकी। हाँ, और वो वाकया नहीं बताते कि रसूल पाक ने फरमाया कि अगर ये काबे के अंदर भी छुप गया तो इसको ऐसे ही काट दो। किसी को काबे के अंदर कत्ल किया था, मालूम है ना ये वाकया? काबे के अंदर तो अमन का वो पैगाम था कि जो भी काबे के वहाँ आ अंदर गया। किसी को कत्ल किया गया या नहीं, आपको नहीं मालूम है ना? हाँ, आपको नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, तो आपकी लाइन जो है ना वो ये वाली लाइन है, दुनियावी लाइन है ना? जी तो मेरे ख्याल से आपके जो वालिदैन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% बरेलवी निकलेंगे, आप पता लगा के देखिए। नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया है। तो आप अपने बुजुर्गों से मालूम कर लीजिए जो जिंदा हैं। दुआ की दरखास्त है, हमारे वालिद के लिए दुआ कीजिए। तो मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, क्या पता आप ये कह दें कि शायद वो पता नहीं देवबंदी थे, तो मैं तो ऐसे नहीं करता हूँ। देखिए देखिए, आप भले ही अमीर हों बहुत ज्यादा, क्योंकि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं तो अनगिनत पैसा भी है आपके पास। मैं पैसे वाले की कदर नहीं करता हूँ, मैं ईमान वाले की कदर करता हूँ। जी, पैसे से पैसा तो दुनिया ही में रह जाएगा। अब हमारे वालिद बस चले बस गए, जो भी बना के गए चले गए, हाँ, खत्म उनका मामला, उनका अमाल उनके साथ है। बस 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 बस। मगर आप अपने वालिदैन के उम्र वालों से आप मालूम कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपके वालिदैन के उम्र के जितने लोग होंगे वो खत्म हो गए होंगे, नहीं कोई तो होंगे आपके आसपास में। जी तो आप मालूम कीजिए कि हमारे वालिदैन का अकीदा क्या था, नजरिया क्या था, वो फातिहा दरूद नियाज मिलाद वाले थे कि नहीं थे? नहीं, फातिहा तो पढ़ना हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कलिया शरीफ गए हैं, वहाँ फातिहा पढ़े हैं। अजमेर शरीफ में डॉक्टर हमारी फुफी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, आप भी जाते हैं कलियर? वहाँ पे ढाई दिन का झोपड़ा है ना, उसी के सामने जो हॉस्पिटल है, अच्छा उसमें हमारी फुफी डॉक्टर थी, सरकारी डॉक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर तो मेरे ख्याल से तो आपकी फुप्पी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसी अकीदे पर होंगी जो बरेलवियों का अकीदा है, क्योंकि बुजुर्गान दीन की निस्बत जिसको मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह वो वफादार रसूल ही बन जाता है। वफादार रसूल, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि वफादार रसूल। हजरत देखिए देखिए डॉक्टर साहब, क्या नाम बताया था आपने अपना? मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आलिम भाई। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने शुरू में ही आपको ये बोला था कि आप धोखे में हैं, अनजान हैं, नावाकिफ हैं, बेखबर हैं। आपने दुनिया का तो बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया, समझे डॉक्टर साहब, मगर दीन का इल्म से थोड़े पीछे रह रहे, थोड़े कमजोर रह रहे। जी कितना अच्छा होता कि आप दीन का भी इल्म कुछ पढ़ते। और ये लोग स्कूल के स्टूडेंटों को, डॉक्टरों को, वकीलों को बड़े अच्छे से झांसे में अपने ले लेते हैं। आप हमारी ऑडियो सुनिए, गुफ्तगू सुनिए, इंशाल्लाह आप खुद ब खुद फैसला कर लेंगे
आप सिर्फ अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती समझ के आप ऑडियो सुनिए, वो सुनिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन वफादार रसूल है, कौन गद्दार रसूल है, जी कौन रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहा है, कौन रसूलुल्लाह की शान में कमी बयान कर रहा है। जी, मैं अगर आपसे सुनेंगे मोहब्बत करता हूँ, मैं अगर आपसे मोहब्बत करता हूँ तो जो आपकी तारीफें हैं, जो आपकी शान है, मैं उसको बयान करूंगा। और अगर आपसे दुश्मनी रखता हूँ तो मैं आपकी जो खासियतें हैं, जो आपके अंदर खुसूसियत है, जो कमाल है, मैं उसको भूल जाऊंगा, सिर्फ आपकी कमी तलाश करूंगा। जी जी, ये तो 100% जी। आदमी यही दुश्मन हो उसकी खूबियां भी उसको ऐब नजर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने दुश्मन में उसकी खुसूसियत नजर नहीं आती, उसकी खासियत नजर नहीं आती, उसका कमाल, जी, उसकी जी। अच्छाई नजर नहीं आती। जिस तरह के एक मक्खी आप जानते होंगे, जी जिनका आप वैसे ही डॉक्टर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस लाइन का होता है मुझे अच्छी तरीके से समझाने आता है कि मैं उसको उसी की लाइन से समझा दूं। मक्खी जानते हैं, तो मक्खी पूरे अच्छे जिस्म को छोड़कर जख्म पर बैठती है, मालूम है? जी और आप डॉक्टर लोग बताते हैं कि देखो मक्खी से बचा के रखना इसको, हर तरह की मक्खी से। और एक बहुत खतरनाक मक्खी होती है जिसको हरी मक्खी बोलते हैं, जी, बड़ी वाली। बड़ी वाली, अगर वो बैठ जाए तो वो तो उसमें कीटाणु ही पैदा कर देती है। दो थी। अच्छा जी हजरत। जी, समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ में आ रही है कुछ? जी 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 अपने आप को रसूलुल्लाह का उम्मती समझ के आप ना बरेलवी समझिए, ना देवबंदी समझिए, ना अहले हदीस समझिए, ना शिया समझिए, जी जी, सबको एक तरफ रखे। इसी वजह सिर्फ से आप तो मैं हमारे आपके पास फोन किया हूँ। मैं न बरेलवी समझता हूँ, न देवबंदी, न अहले हदीस। हाँ, मगर सुलह कुल्ली भी मत रहिए। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या कलम तेरे हैं। जी, अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में बसा ली तो सारी दुनिया की जो शय है ना वो आपकी गुलाम बन जाएगी। मगर शर्त यही है कि दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए पहले, और जब रसूल पाक की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो रसूल पाक की शान भी नजर आएगी, रसूल पाक का हर कमाल नजर आएगा। और जब रसूल पाक की मोहब्बत ही दिल में नहीं होगी तो हुजूर का कमाल भी आपको वो कमाल नजर नहीं आएगा। जी जी जी, नहीं उसका जो मुनकिर होगा तो सारी जो है बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात और कमालात का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम आदमी समझेगा तो वो तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आप बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और आपका हॉस्पिटल है अपना, तो आपके यहाँ हर लाइन का बंदा आता होगा, आपके यहाँ बड़े बड़े औहदेदार लोग भी आते होंगे, आपके यहाँ बड़े बड़े देवबंदी आलिम भी आते होंगे। जी, जी। अब आप तलाश कीजिए कि कौन देवबंद का बहुत बड़ा आलिम है, आप मेरी बात कराइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर। ओके सर, ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं, तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।